नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ एंड यू आर वाचिंग एड टॉक्स विद अमिताभ। और एक बार हम फिर आपके साथ मुखातिब हैं एक और एपिसोड के साथ with the life and times of Mr. Hari Kishan Chaudhary. Friends, we have a commitment with all our viewers and audience that we are going to bring to you in Ed Talks with Amitabh social influencers, educational influencers, a life which has an impact, a life of significance. और इसी क्रम में हम देश के कोने कोने से, देश के बाहर से चुनिंदा शख्सियत को आपके साथ लाते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं. And we have gone to, we have brought people to you, connected to you, people from Kolkata, people from Mumbai, people from Hyderabad, people from Delhi, from NCR, different places, Varanasi, Lucknow. देश के कोने कोने से हम आप लोग के पास चुनिंदा शख्सियत को लेकर के आते हैं. और इसी क्रम even outside India we have connected you with the eminent influencers from New York, from Dubai and from corner of the globe. और इसी कड़ी में, इसी कमिटमेंट में today we have a person, एक ऐसी शख्सियत, with whom I also connect very strongly and have been influenced and admire his level of achievement, pace of work. I'm talking about a young man at 78. Even आज की तारीख में जिस पेस पे वो काम करते हैं, जिस तेजी से वो चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, इन्होंने शुरुआत करी एक अपने लाइफ की फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा कॉल्ड बहल. और बहल से बाहर निकल के आए, एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, विक्रम इंडिया, which is one of the leading industrial house in India. And thereafter, gradually he realized that his calling is to create an impact, to make a social contribution. And in that journey, बहल में उन्होंने शुरुआत करी in a very remote area. उन्होंने स्कूल स्टैब्लिश किया, रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश किया, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे स्टैब्लिश किया, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज. It's become around 200 acres of land area where it's a complete educational township by the name BRCM, and which is a force to reckon with today. And इसी जर्नी में तमाम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल बॉडीज को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया. Be it Agrasen in Kolkata, Heritage group of institutions. He's currently chairman of Kalyan Bharati Trust. He is chairing so many educational and social ventures. Friends, अगर हम इसके बारे में बात करते रहेंगे तो शायद introduction itself is going to be very long. But without taking any further delay, he is connected to us from Kolkata, waiting in the School Times virtual studio. Allow me to invite Mr. Hari Kishan Chaudhary ji on our show on the screen to learn from his life and time and his experience. Namaskar sir, welcome to Ed Talks with Amitabh. Thank you. सर, आज आपने वक्त निकाला, अग्री किया हमारे बीच में इस शो में आने के लिए. वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. और इस शो में हम लोग डिफरेंट ऐसे शख्सियत को लेकर के आते हैं जिन्होंने सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किया है. आपने इंडस्ट्री के लेवल पे भी एक एथिक्स को फॉलो करते हुए उसको एक मुकाम पे पहुंचाया और तमाम सोशल वेंचर्स को लेके आया. हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स आपके लाइफ एंड टाइम से आज कुछ लेसन्स लेकर के जाएं. एंड इनफैक्ट बिकॉज आई नो यू सो वेरी पर्सनली, हम लोग जब नॉन लोग आपके बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एट द एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ दैट यू आर, at 78 you are so youthful कि हम लोग को कभी कभी भी शायद डाउन कि अभी भी वो एनर्जी लेवल आप मेंटेन करते हैं. So we would like to know a lot of things about you, आपकी इस एनर्जी का राज और किस तरह से आपने अपनी लाइफ को आगे लेकर के आप चले. So we would like to understand sir, बहल जो एक छोटी सी जगह है वहां से एक इतना बड़ा विजन कैसे आपने क्रिएट किया और कैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ी. I was born in Bahel on 4th December 1943. Sir. So you are telling 1 year more. I am running 77 actually. 77, yes. So there, my father had his soaps, retail and wholesale, and he's a wonderful person he was. Very religious, very knowledgeable. So I told him
I will not sit on your soap. Okay. So class 10 I passed from Behel. Sir. At that time it was Punjab University. And then in 1961, 57, Sir. I went to BITS Pilani for a graduation. Okay. 4 years I was there till I completed my graduation. Ji. After that, I came to Calcutta Okay. for two reasons. One, I was having in mind to complete an LLB course. Okay. I always prefer this course for everybody, Okay. and also to do something. Right. So I was not completed in 3 years, 1.5 years. I left that course because Right. business, the growth of business, the Right. pressure, opportunities were Right. so much that I fully involved myself into that. Okay. Okay. And in that process, and 63 I got married. Okay. 19, because in our family we are four brothers and four sisters. I am the eldest. Okay. Then I'm the eldest, and then we have a lot of other relatives, buajis, mamajis. All are very well connected till now. So they had the marriage of a male in our family was 25 years earlier of my uncle. Okay. So everybody persuaded Babuji that look, we don't understand what is his age or not. हमको बहुत चाहिए घर में. तो बाबूजी बोले भी देख लो. मैंने कहा आपकी जैसी. So when I got married, I was 19 and a half only. Okay. So in Calcutta, they came to see me like the customary, the in-laws. They approved. Then when I went to Behel, all the formalities were done, and my marriage took place on 2nd May 1963. Okay. Okay. Yeah. So at a very young age you got married, sir. हाँ, बच्चे भी जल्दी जल्दी हो गए. उसके बाद वो 20 किलोमीटर था उनका गांव राजगढ़. Right. एंड बड़े अच्छे लोग थे, बहुत नामी. उनके जो ग्रैंडफादर थे, अब तो सब गए मेरी वाइफ के. Right. उनको बुलियन किंग कहा जाता था. बुलियन किंग कैसे कि वो कानपुर में रहते थे अपने मामा के साथ. तो उनका चांदी और सोने का कारोबार था. जी. तो चांदी में इतने वो थे कि पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, तो ऐसा बोलते थे कि आज का भाव तो ये है, कल की मदन जाने. तो वो सुबह भाव निकालते थे, वही होता था. Right. इतना था. खैर, तो उसके बाद कलकत्ता आ गए. 63 में शादी हुई बहल. तो उसके बाद फिर कलकत्ता आ गए, आके काम में लग गए. So that way my first training was with my maternal uncles in Tinsukia. In the supply, I did very hard work that time. In Assam, we made special equipment for Assam Oil Company. That time it was British company. Right. And machinery for tea gardens, ONGC. So I get a chance to learn so many things. Right. And in 1961, I think in India, this metric weights and measures came compulsory. Absolutely. We had a foundry. I said, let us start making this. And it was 24 hours working, and people were lying in lines, please give us. And this from 1 gram to 50 gram was brass. Right. That I connected with a party in Agra. That is a place in Agra. So he used to. So we became the largest supplier of weights and measures in Assam, and people were astonished and taken aback how they are making so much. I was completely involved 24 hours. Right.
So that was one incident. Later on, then I said, 1 year I was there, 61. I said I want to go to Calcutta and Right. establish the business there and also do my LLB, which I told you I joined and left halfway. Okay. Due to the interest and in work, very much interest. Okay. In one single day, I used to travel to Taliganj, and that same day, the north side up to Badanagar. Okay. So we developed so much business, and like that, this company we started, Vikram India Limited. It was originally Vikram Forgings and Allied Industries. Okay. Made it small because so many other businesses were included. So जी. that was started in 1974. 1974. सर विक्रम के बारे में हम और जानना चाहेंगे, लेकिन इस समय आई वुड लाइक देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स आई एम ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम यू. आई वुड लाइक टू emphasize it for our viewers. Friends, if you notice the life and journey of Shri Harikishan Chaudhary ji, it started from a small town but with a big vision. Chaudhary ji ने जब बहल से शुरुआत करी, he had a choice because his father had certain shops and other business there. He was very clear right at that point of time that he wants to do something big, and he was ready to come out of his convenience zone. And I think that is the first lesson that we all need to learn, that we need to have a clarity for our own self, and that's what Sri Harikishan Chaudhary ji had right as a youngster. And thereafter he was willing to come out of his own comfort zone. And I think that is where we talk about the power of thinking big. He was thinking big right from those times, and he wanted to do something of his own, and he was willing to get trained, and he traveled from one corner of the country to the other, joined his maternal uncle in Tinsukia, learned the tricks of the trade, but he was not satisfied there also. But even as an entrepreneur, as someone who wants to make a contribution, what I learned from what he shared just now, that the day you feel that you are satisfied with what you've done, that's the day you will stop growing, because you have to have that craving to desire to do more. And he went on with the family challenges. उस समय एक सामाजिक परिस्थितियां फर्क थी, social context was different, got married very early, but then his vision was never deterred. He was never satisfied from whatever he was achieving in life, and that is how came into existence Vikram Forging at the beginning, and gradually it took different shape. So Vikram Forging से जो आपने शुरुआत करी, वहां से फिर कैसे चीजों का expansion हुआ? Yes, you see, that was initially making a special component for tea industry. That is called the CPC segment. Because I had a habit of reading and knowing which industry is going which way. So that component I started making, which was nobody making the way I made. And I got one hammer, forging hammer, from EMC Steel All Limited. There Kamalnath used to learn business. Kamalnath father it was EMC. Okay. So anyway, and that we restored, bought a land in Howrah. And in those days, every Sunday I used to go to factory. 6 days I used to work in the office. Office also, mornings to visit, and in the half the day to look after in the finance account. Because that time I could not afford to keep so many executives. So most of the work I used to handle or guide myself. Okay. So that was a wonderful time in Calcutta. And in 1974, you see, I generally tell one more thing. I generally do not believe so much in this patadas and dates. My family had. I had 3 dates in mind: 15th August, 26th January, 2nd October, whichever comes. These 3 days. So when this Vikram Forging Howrah factory I started, I took the 2nd October as leveling the land,
Okay. 18, Okay. everything simultaneously. Then Okay. this hammer was installed in record time. Hammer Right. requires a lot of digging and installation because the hammer forging, it should be. Right. So that started production on 26th January. Okay. Okay. That's 1970. fantastic. Yeah. You know, And so then, this is a very interesting way to look at life. And friends and audience and viewers, I would like to emphasize what Shri Harjikishan Chaudhary ji just now talked about. ये जो कुंडली से हम लोग तारीख और दिन देखते हैं, he has a different philosophy. That he अगर superstitious ही होना है तो let us be patriotically superstitious. And he has 15th August, 26th January, and 2nd of October. ये 3 दिन देश के में कुछ भी काम करने के लिए हमेशा शुभ होंगे और ज्यादातर चीजों की शुरुआत के लिए I think that itself speaks volumes for the person himself. Sir. same dates I followed while going ahead in Bahel. So Sir. this was, and then what happened? I made a circular for segment, and I mailed to all the tea companies of the world. Ji. Suddenly, a large order came from Uganda on the basis of that letter, Okay. and that was highly motivating and supportive. So those, for order wise I was okay, money wise also okay, because giving the export order to bank, they will give 80%. This is called packing credit. Right. My money problem, because I generally I'm not interested in borrowing money. So and at that time, my one friend, Mr. Ganapati of Canada Bank, he's old. He said, I went to him, I said, I want to open an account and I also need some cash credit or something. Right. He said, let me visit your factory. He came with me to my factory. Ji. And after seeing everything, he said, you are coming now to the bank after installing MR, investing so much. I said, now I need the money. So I came. That time I had money. He was so impressed that Right. told me in his office, how much do you want? How much Okay. limits do you want? I said, if I take more, I have to pay back also. Right. Need only as per my need. He said, you are the only customer whose bank is giving more and he is taking less. So that way, that order of Uganda was completed. Okay. Then I became very much interested in exporting. Okay. In 1977, I went to Africa. Okay. That was my first visit. And I had a lot of energy also. I traveled all the 9 tea producing countries in one trip. All right. Okay. And In a single trip. In a single trip, you traveled all the 9 countries. And I secured orders. I was flooded with orders. Okay. So that was a wonderful trip. And 1970, that trip only, last visit was Mauritius. That time tea was there. Now they have stopped tea. So Right. that time I called to my wife phone. Right. I said, a few days work is remaining. What should I do? She said, no need to come because Ganesh was going to be born. She said, I'm going to Portland. She was so annoyed that I said, okay, I'm coming. So next day I came to Calcutta and 3 days after that, Ganesh was born. So that way my factory was complete with orders, and I had also met with all the tea producing companies in Calcutta. Right. I never visited any Marwadi's office or any other small company, and there I found tremendous support. Tremendous support. Okay. And they tested me, and they were so happy. At one time, they for a product of mine, Right. by mistake they put price much more. I said, this price is not mine. So I said, Right. so if it is less, you please tell us. No, it is more. I can't take it because others also I'm supplying. Suppose anytime it is compared, no. I said, then he said, okay, you make a new pro forma.
I said I had given this price, but somewhere. So many matters like Right. that. 3 and 4, their companies, small matters I sorted. So in fact, they made me sole supplier. Okay. And even to London, they wrote, on ownership, that Right. anything which Mr. Chaudhary can give, we will take from him. Okay. So the credibility was established at that point of time. And So many things on where they were stuck up by other suppliers. I said, right. okay, don't worry, I'll sort it out. So that company is then this McNeil and Maker. This was later on. It was bought by Khaitan. That time it Right. was. That time Williamson Maker was the name. Right. So at a few companies, I was flooded with business because everyone understood this man is genuine. He will not cheat. He will not give wrong product. So Right. that way the business grew. Then in 1979, there were some union in my factory Okay. from by the CPM. So, so before we come to this particular experience of yours, I would like to emphasize on the learnings that I've got from what you shared just now. Friends, अभी जो हरिकिशन चौधरी जी ने बताया, I think I can easily give a title to today's episode as प्रयास से सफलता तक, effort to success, because it's a journey of effort which has led to success. And between effort to success, one thing which was a key point which I could sense what Mr. Harikishan Chaudhary ji just now talked about is belief. He had tremendous self-belief in himself, and that is why he was never afraid of making effort. He was ready to go out, and he was zealous about making effort anywhere. Even when he first time went to South Africa, he covered 9 cities in a single trip, and he believed that he went to explore, he converted them into opportunities, and that belief is very, very important. And friends, whosoever is watching it live and whosoever will be watching it at a later recorded time on our school times, I would like to emphasize effort is the only key that leads to success. And Chaudhary ji has shown it, lived it, and demonstrated it. His efforts have led to the outcomes, and his belief also, was the major reason he could make those efforts. At the same time, he also became a problem solver. He was a problem solver for his clients. उनकी जो मुश्किलात आती थी, he was ready to say, "Don't worry, I am going to sort them out," and that helped in establishing credibility. And friends, to be an entrepreneur, be a social entrepreneur or an industrial entrepreneur, there is nothing bigger than the credibility that you establish. Once you establish credibility, things go on. And Mr. Hari Kishan Chaudhary has established his credibility with his clients, and that started spreading its wings thereafter. And now you were sharing, sir, about जैसे जैसे आप बड़े होते गए तो लोगों के the industry became bigger. So union also creeped in your setup there, and you were sharing that experience. Yeah. So we were very good. The 3 ministers came to my factory because Sunday I used to spend in the factory. जी. Workers they had this connection. जी. So when they started sitting, I said, किसी की ऑफिस में पूछ के बैठा जाता है. Right. वो खड़े हो गए, मैंने कहा नहीं बैठिए कोई बात. तो जो वर्कर सोचे यार ये तो तीनों मंत्रियों को खड़ा करवा लिया. This effect I wanted. So देखिए साहब, मैंने कहा मेरे से ज्यादा कोई फैसिलिटी देता हो, पे देता वर्कर्स का ख्याल रखता हो तो बता दीजिए. तो वर्कर्स में काफी थे, वो बोले साहब ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे चोट लग जाती है, गाड़ी हॉस्पिटल ले. कौन से ओनर कार देता है वो वही बोलने लगे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. और किसी के फैमिली में प्रॉब्लम हो गई, एडवांस ऑलरेडी और देता हूँ. My policy of success has been that keep the labor happy, pay them nicely, and उस टाइम में कोई टाइमली वेज भी नहीं देता था. और मेरा फिक्स कि कहीं से भी रुपया आए लाना है, उनको डेट पे देना ही पड़ेगा. अच्छा, मेरे फैमिली में कौन कौन थे? 3 मेरे छोटे भाई, 4.
एंड मेरे कजिन भी थे 4, हालांकि उनका अलग था लेकिन मैंने उनको भी ले लिया। ओके। तो मेरे एक रिलेटिव ने कहा अपने सूरत चलते हैं कपड़े का, मैं उनके साथ चला गया। मैंने वहां की वाइब्रेशन देखी, लगे हुए काम जी जान से, क्या यंगस्टर्स इन द होल फैमिली, राइट, कमाल की प्रोग्रेस हो रही थी, बिकॉज सिंथेटिक cloth was developed. So I said, look, let us take a soap today itself. आप तो आने को बोले, आप तो आने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा अब आ गया मैं। उसी दिन सोप ले ली, मैंने एक कजिन को भेज दिया, फिर उसके बाद एक फैक्ट्री की जमीन ली, दूसरी फैक्ट्री की जमीन ली, और सबको मैं सारी फैमिली को वहां भेज दिया। ओके। मैं तो जाऊंगा नहीं, मुझे कलकत्ता जितना पसंद है, मुझे दुनिया में उतनी पसंद है। ये भी एक अचरज, इसके ऊपर भी एक कहानी हुई। तो वो मैं नहीं छोड़ूंगा कलकत्ता, हाँ बाकी सबको मैं सेट कर देता हूँ। तो सूरत में हमारा राइट टाइम पे प्रवेश हुआ 79 में, एंड वी प्रोग्रेस्ड अ लॉट। टुडे वी हैव I think 12 industries there. My in Surat itself. Surat itself, and my sisters are there. वो हमने उनको बुला किसी की, और मेरे बड़ी बेटी भी वहाँ है, एंड बड़ा बेटा भी वहाँ, अनिल। तो चौधरी जी सूरत में है अनिल। राइट। तो वो अच्छा प्रोग्रेस हुई वहाँ पे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस। तो वो जब हो गया, एक चीज शुरू से मेरे दिमाग में थी, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं सिंपल खाना खाता हूँ, मोस्ट सिंपल एंड सिंपल मेरा है, छाछ दही, कोला कभी कभी ले लेता हूँ लोगों के साथ, उसके आगे मुझे टेस्ट नहीं मालूम। तो वो उसका फिर मेरी यात्रा है अफ्रीका की बहुत हुई, सूरत वाला काम भी जम गया, बहुत जबरदस्त सक्सेस मिली वहाँ। तो मैं 3 बार तो जाना ही पड़ता था, एक बार संभालने के लिए, फिर धीरे धीरे सब तैयार हो गए, अब कम जाना पड़ता है। तो चीजें फिर एस्टैब्लिश होती चली गई ग्रेजुअली उसमें इस तरह। अच्छा, आई हैव 2 sons and 3 daughters. ओके। सो पहले तो डॉटर है जो प्रतिभा, जिसके नाम से सूरत का ग्रुप है, प्रतिभा ग्रुप हमारा जी। एंड अब तो वो भी सूरत शिफ्ट होगी, उनका इधर था हिसार जी। तो अच्छी फैमिली में शादी हुई, जल्दी लड़का हो गया, लड़का बड़ा हो गया, तो वही हालत उसकी भी, जल्दी शादी करो, कर दी, उसके भी लड़का। तो माय डॉटर इज मदर नाउ, नोबडी कैन बिलीव, एंड माय सेकंड डॉटर इज इन अहमदाबाद, एंड थर्ड इज इन दिल्ली। जिंदल फैमिली में है थर्ड, सेकंड रूम का फैमिली है, बहुत तीनों अच्छी, एंड बहुएं दोनों आसाम की हैं, अनिल की वाइफ भी आसाम की है, गणेश की वाइफ भी आसाम की, मतलब तो आसाम ने बहुत हेल्प किया हमारी। आपकी रूट्स पूरी आसाम में है सर। आसाम से चलता हुआ। In fact, I must say, आपके दोनों बेटे भी, मिस्टर अनिल चौधरी, ज्ञानेश चौधरी, they are the leading industrialists today. They have created a name and established themselves in a big way now. किसी का कोई खराब आदत नहीं है, कुछ नहीं है, काम करना। मैं इंटरफेरेंस करता नहीं, मेरा शुरू से है कि मैं ये कर लो, नहीं, you do wherever you need to ask me, you ask, but I will not interfere. गलती करो। तो इस तरह से सूरत वाला, और ये इधर फिर ज्ञानेश पढ़ के आया था लंदन से, 3 साल पढ़ा ना वहाँ कार्डिफ में। तो बोला मैं तो कोई नया काम नया करता हूँ, ये तो चल रहा है फोर्जिंग वाला। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया, मैंने कहा यू थिंक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसने उसको पकड़ लिया। तो बहुत ट्रैवल की पूरे वर्ल्ड में, फेयर्स अटेंड किए, उसके समझ में आ गया। In fact, Vikram Solar has become a flagship for India at the moment in the solar industry sector. अच्छी फैक्ट्री लगाई। सर यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अभी जो मिस्टर हरिकृष्ण चौधरी जी ने जो बातें करी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे आपके लिए समझने सीखने के लिए है, लेसन इम्बाइब करने के लिए है, that when you get into a journey of being an entrepreneur, जहां आप एफर्ट कर रहे हैं, सेल्फ बिलीफ रख रहे हैं, वहां पे मुश्किलें भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे,
and that is where we need to have that courage. क्योंकि अगर चैलेंज और मुश्किलें नहीं होंगी तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हो. You need to work, and whenever you work there will be challenge, but you need to be courageous to deal with that, and that courage was very much demonstrated there. सर यहाँ पे थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ और चलना चाहेंगे. आपने फैमिली के बारे में बताया, कैलकाटा से इतना प्यार क्यों? You said कि मैं कैलकाटा से मुझे नहीं जाना था. भाई ऐसा है, मेरे यहाँ फ्रेंड्स उस टाइम में कलकत्ता के ही बहुत थे. एक तो था वो नेताजी सुभाष कजिन, उनके घर भी 2-4 बार गए. तो मैं क्यों इन्फ्लुएंस हुआ कलकत्ता से. जितने लोग कलकत्ता के बारे में दोष निकालते हैं वो सब फालतू बात है. जितने भारतवर्ष को दोनों राष्ट्रगान किसने दिए? वंदे मातरम को बंगाल ने. आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा भाग किसने लिया? बंगाल के शहीद हुए. उसके बाद साहित्य, हिंदी का तो कोई नामो निशान नहीं था. ये बंगला साहित्य का ट्रांसलेशन करके ही जिंदा है, उसका ट्रांसलेशन कर दिया. विमल मित्र कोड़ी दिए किनलम का, खरीदी कोड़ियों के मोल बना दिया. साहित्य जितना थोड़ा बहुत प्रेमचंद वगैरह थे, बाकी सब ट्रांसलेशन. बड़ा आराम हो गया तो बंगला से. उसके अलावा यहाँ के लोगों में कल्चर है, और मैं नहीं मानता यहाँ बेईमानी है. मेरे को मैं बताऊं, उन सालों की बात बताऊं 70 की, जैसे शाम को रुपया आ गया कैश, अब घर पे कौन लेके जाए, तो मेरे 2-4 ये खाली थे मैनेजर से, उनके यार तू ले जा इसका ले. तो इतना बड़ा फैक्ट, और इतने अच्छे लोग सब बंगाली, मैं तो कह नहीं सकता. ये इससे ऊपर कोई जाति नहीं है इंडिया, कोई नहीं है. कि आप किसी बंगाली के घर जाइए, हम लोग तो ऐसे ही पानी गिलास दे देते हैं, वो उसके साथ एक संदेश जरूर आएगा कम से कम. खाली पानी नहीं देंगे वो लोग. मैं कितना एक्सपीरियंस करता हूँ. उसके बाद जो भई बसना है, लाल भई बसना, ये बंगाल की देना है, किसी को मालूम ही नहीं है. मारवाड़ियों ने हर एक चीज बंगाल से सीखी है. तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्रोथ में, देश की ग्रोथ में, इकोनॉमिक. भाई वो ठीक है, बाद में इनके ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं रहे, नहीं तो बंगाल के इनकी थी, और ये बड़े भारी थे. तो लेकिन किसी मारवाड़ी का काम बंगाली एग्जीक्यूटिव के बिना नहीं चल सकता, ये समझ. एंड जो कल्चरल हेरिटेज थी और जो एक नेशनल कंट्रीब्यूशन जो आपने कहा, दैट हैज ड्रॉन यू टू love Calcutta and West Bengal so much. Yes. Now I coming to my passion of education. सर यहाँ पे इससे पहले कि हम आपके एजुकेशनल साइड के सफर के बारे में बात करें, आई वुड लाइक द ऑडियंस एंड व्यूअर्स टू नो, आज से करीब 20-22 साल पहले आई हैड दैट वाज माय फर्स्ट विजिट टू BRCM इन बैन. और जब हम वहाँ पे गए तो चौधरी जी ने कहा कि भाई वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, जाओ. हम भी वहाँ पे गए. दिल्ली में एयरपोर्ट पे गाड़ी आ गई, हमने बाय रोड हम बहल पहुंचे, और करीब 60 किलोमीटर उस जगह पहुंचने से पहले मेरा अनुभव जो था, मैं उस पहला अनुभव शेयर करना चाहता हूँ. एंड दैट इज, हम चले जा रहे थे, एक दोनों तरफ सिर्फ रेत दिखाई पड़ती थी, बीच में कहीं पे ऊंट दिख जा रहे थे, बिकॉज ये हरियाणा राजस्थान बॉर्डर की तरफ ये जगह है, और दोनों तरफ रेत, बीच में कहीं कहीं पे मोर नाचते हुए दिख जा रहे थे, और ऊंट गाड़ी दिख रही थी. मेरे को लगा भाई मैं जा कहाँ रहा हूँ, ये वहाँ पे इंस्टीट्यूशन कहाँ पर होगा, क्योंकि मेरा वो पहला विजिट था. और जब मैं वहाँ पे पहुंचा उस कैंपस के सामने, और जब कैंपस, तभी मैंने देखा है काफी बड़ा सा कैंपस, और उसकी बाउंड्री दिखाई शुरू हो गई. और द मोमेंट आई एंटर्ड, I was shocked and pleasingly surprised, and I felt कि मैं तो किसी ग्रीन जोन में आ गया. कैंपस के अंदर एंटर करते ही जो पूरा एक रेगिस्तान सा जो दिखता था, मरुस्थल सा जो दिखता था आसपास 60 किलोमीटर के सफर में, अंदर घुसते ही इट वाज ऑल ग्रीन, फुल्ली इक्विप्ड कैंपस. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक. 20 साल पहले उस 60 किलोमीटर के सफर में मेरे को ये ताजुब हो रहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो कैसे सकता है. और श्री हरिकिशन चौधरी जी ने उससे भी 1 दशक पहले और उससे भी पहले उसको विजुअलाइज किया कि वहां पे एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया जा सकता है. I think that itself is something that we need to understand. Sir, ये जो एजुकेशन की तरफ आपकी शुरुआत हुई, और बहल जैसी जगह पर
जो मतलब आज भी किसी को बताते हैं तो लोग कहते हैं क्या होगा। आई थिंक बहुत सारी रूपरेखा पिछले 25-30 सालों में महल की बदल गई बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट यू हैव सेट अप देयर। हाउ कुड यू विजुअलाइज एंड एग्जीक्यूट दैट? उसकी भी एक कहानी है। देखिए यहाँ पे एक रामकृष्ण जी सरावगी मिनिस्टर थे बंगाल में। जी धान राय की गवर्नमेंट में वो मंत्री थे। जी तो कोई फंक्शन में मेरे उनसे मुलाकात हो गई, उसके बाद आना जाना हो गया। उनकी कपड़े की दुकान भी थी कलाकार की। जी मैं जब भी उनसे बात करता था तो एजुकेशन की करता था। ओके तो मैंने कहा देखिए मेरे लिए दो जगह इंपॉर्टेंट है, मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि। जी बोला ठीक है, दोनों जगह करिए आप। तो पहले पहल शुरू किया 1987 में कर दिया सब, वो भी तक चालू है। 32 साल हो गया या कितना हो गया, तब अब तक कंस्ट्रक्शन चालू है वहाँ। ये सारे कॉलेज जो बताया आपने, जी स्कूल जी जी एंड एग्रीकल्चर फार्म, डेयरी फार्म, सब कुछ। अच्छे आदमी मिलते चले गए। लेकिन सक्सेस क्या होती है, अच्छे आदमियों को पकड़ो और उनको सौंप दो। मेरे शुरू में शेखावत जी थे, बिरला जी स्कूल प्रिंसिपल थे, वो आ गए कहने से, अब गुजर गए। उसके बाद जो भी आए, भविष्य सिन्हा जी देख रहे हैं ओवरऑल डायरेक्टर। सो टीम इज, और ये वैसे बहल का काम ज्यादा अनिल के जुम्मे लगा है। उसका कारण क्या है, वो पूरे 11 साल बिरला पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा है। स्कूलिंग सारी उसकी पिलानी की है। सो ही नोज एवरी पर्सन, ही नोज। उसके बाद वो बंगलोर से उसने इंजीनियरिंग की, दैट वे इज द फर्स्ट इंजीनियर। राइट वो बहुत इंटरेस्ट लेता है, रोज उसे वही संभालता है। ओके क्योंकि सोच लेना चाहिए ना कि आगे कौन देखेगा। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद जी वो तो हो गया, फिर हमारे मन में आया भी कलकत्ता में करें। ओके वो सोचते रहे, ये ट्रस्ट मेरा ही बनाया हुआ था, कल्याण भारती ट्रस्ट। कल्याण भारती ट्रस्ट जी ट्रस्ट उनको दे दिया, उसमें कुछ लैंड भी ली हुई थी, वो भी दे दी उनको। जी बाकी अच्छा हो गया, शुरू से ट्रस्टी अच्छे। हमने शुरू में ये रखा कि भाई टोटली नॉन प्रॉफिट एंड नो इंटरफेरेंस। तो वो ये सारे ट्रस्टियों की बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, सबने कलकत्ता में आके तरक्की की। सो दे आर आल्सो दैट वे ऑफ द सेम माइंडसेट। ये फाड़पुर वाले, सेंचुरी प्लाई वाले, ये जी इनकी भी प्लाईवुड का ही है। ये पैटर्न टैंक वाले बुद्धिया जी, ये सारे आदमी बहुत अच्छे, मैंने जिनको लिया ट्रस्ट। जी 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 उसके बाद टोटल ट्रांसपेरेंसी, नो इंटरफेरेंस इन द वर्क। तो करते करते ये मिसेस सप्रू को मैंने फाइनल किया था। ये लोग तो ये दिल्ली पढ़ाती थी उस टाइम में। जी जी इंटरव्यू में देखा तो मैंने कहा ये तो फिट है। मैंने कहा कल ज्वाइन कर सकती होगी, परसों। कुछ नहीं, आप सैलरी कटेगी वो हम दे देंगे, आप छोड़ो उसको। वो ऐसे ही आई। उससे पहले मिसेज अटल को लाए, वो सेंट जेम्स में पढ़ाते। मैंने शुरू में बहुत मेहनत की, मतलब एक एक आदमी की कर्मठता और जेन्युइननेस देख के मैंने लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म मैं थोड़े देखता रहूंगा। ऐसे सब सर आपके बारे में 2-3 चीजें लोग बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू करते हैं, और मैं चाहूंगा कि उसका सीक्रेट आप यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को भी शेयर करूं। एक है आपका लोगों की पहचान, आप यू आर एबल टू आइडेंटिफाई राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, एंड दैट इज हाउ लॉट ऑफ थिंग्स वर्कड ऑन। और दूसरा आपकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। आप एक बार जब कोई चीज सोच लेते हैं तो वो जब तक हो नहीं जाती तब तक वो आपके दिमाग से बाहर निकलती नहीं है। यू कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। सो हाउ डू यू गो अबाउट क्रिएटिंग दैट विजन, आइडेंटिफाइंग कि करना क्या चाहिए? क्योंकि अगर मैं चाहे मैं बहल को देखूं, बीआरसीएम को देखूं, चाहे विक्रम इंडिया को देखूं या हेरिटेज को देखूं, कल्याण भारती ट्रस्ट के जो इतने सारे, कहीं ना कहीं एक चीज कंप्लीट हुई आपके दिमाग में दूसरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी शेप लेने लगता है। मेरे जो आदमी काम करने वाले, उनको मैं आराम नहीं करने देता। एक के बाद सब आइडिया मिलती जाती है। देखिए स्कूल से शुरू किया हेरिटेज को जी। कलकत्ता शहर में जिस स्पेस पे हेरिटेज इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ, that is still being talked about, and I think a lot of effort has gone at a personal level by you, and I would like yeah
I would like my viewers to know that friends, किसी भी काम को करने के लिए वंस अगेन जो चौधरी सर इस समय अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अगर आपका विजन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इफ यू हैव अ पॉजिटिव विजन, you have to give in your best. और in his dictionary नामुमकिन शब्द बिल्कुल नहीं है। वो एक डॉन फिल्म का डायलॉग है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हरिकिशन चौधरी के डिक्शनरी में किसी भी काम के लिए नामुमकिन शब्द बिल्कुल भी नहीं है। He finds a way to get it done. The condition is only one. It should be something that is socially productive. It has a welfare of the people. And अगर education से related कहीं पे भी कुछ भी बात होती है, तो I think Mr. Harikishan Chaudhary is there to support any positive cause related to education. आज की तारीख में अगर हमको लिस्ट करना पड़े तो शायद अगले 10 मिनट तक हम लोग ये लिस्ट कर रहे होंगे कौन कौन से ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं which he has mentored and given his patronage to. And sir, यहाँ पर हम लोग जो लोग आपको करीब से जानते हैं, and I would like audience to know और उसका सीक्रेट भी, मुझे पता है एक आध बार आपके साथ सफर भी क्या दिल्ली से BRCM तक, और आप किताब उठाते थे और उस सफर के बीच में पूरी किताब आपकी कंप्लीट भी हो जाती थी। योर स्पीड ऑफ रीडिंग इज अमेजिंग। दो चीज आपकी रीडिंग को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, आप खुद तो खूब पढ़ते ही हैं और आप दूसरों को भी खूब पढ़ाते हैं। आपको जो चीज पसंद आ जाती है, आपके ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस हैं कि उसकी जेरोक्स होती है एंड पीपल whom you think who would benefit from that, उसका जेरोक्स हम लोग के सबके पास मेल होकर के पहुंच जाता है। तो आपकी ये रीडिंग का जो पैशन है और रीडिंग की जो स्पीड है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दैट, हाउ डू यू गो अबाउट इट, एंड ये दूसरों को पढ़ाने का शौक कब से और क्यों? देखिए मैं बताऊं, मेरे पिताजी का भी रीडिंग का बहुत बड़ा पैशन था जी, तो उनसे ये मेरे को, तो उसके बाद एक अच्छी किताबें, अच्छी स्टैंडर्ड की किताबें अच्छी, तो मेरा कोई क्लब में जाने का मतलब ही नहीं, कोई बाहर जाके खाने का नहीं, तो मेरा पूरा इवन संडे ऑल्सो आई दिस मेनी इयर्स आई डोंट गो, तो वो मेरा पढ़ने में लग जाता है। जितने बुक फेयर करते हैं वहां भी मैं जाता हूँ प्राय, कभी तो सब में तो नहीं, तो मैं छांट की किताब 2-3 आदमी ले जाता हूँ साथ में, जहाँ 2-4 मिनट पे करो डिलीवरी लो तो नेक्स्ट। तो इस तरह से बहुत अच्छी पुस्तकें फॉरेन राइटर्स बड़े इंटरेस्टिंग, जो कोई सोच भी नहीं सकता हो, मिली मेरे। तो क्या है कि पढ़ने का काम भगवान ने इंसान के भरोसे दिया है, कोई पशु तो पढ़ नहीं सकता, बिल्कुल, और उससे ज्यादा सस्ता काम। और if I read a book on Alfred Nobel, I reach him by reading the book. बहुत सारी चीजें पुस्तकों से अपने को मिल जाती हैं, क्योंकि अब वो टाइम तो है नहीं। तो इतना मेरे को फायदा हुआ कि पूछो मत। एक बार मैंने ऑस्ट्रिया से स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट किया, राइट, तो वो फैक्ट्री में आ गया और मैंने नॉन मैग्नेटिक लिखा था, वो मैग्नेटिक आ गया। मैंने उनको कहा भी देखिए आप संभालिए, मेरा तो नॉन मैग्नेटिक लिखा हुआ है आपके ऑर्डर में। उन्होंने कहा ये तो हम ठीक कर देंगे। ऑस्ट्रिया से आए 2 आदमी आकर के उसको गर्म ठंडा किया, कुछ नहीं। मैंने बोलिए क्या करें, तो वो बोले दिल्ली आ जाइए। दिल्ली ऑस्ट्रिया ने वैसे में मुझे बुलाया, वो किया। तो मैंने जितने डिटेल में बताया कि ये आपकी कहाँ गलती हुई है, आपका माल फोर्जिंग में बहुत बढ़िया है, ओनली यहाँ मार खा गए आप, कि ये इतना कार्बन आपको रखना चाहिए था, उससे और आपने जैसे ज्यादा बढ़िया बना दिया। राइट। तो मेरे को पूछता है आपने ये मेटलर्जी कहाँ पढ़ी है? मैंने कहा मेटलर्जी विक्रम फोर्जिंग में पढ़ी है, मैं तो बीकॉम आदमी हूँ। ये तो इतने डिटेल में आप मेटलर्जी को, स्टेनलेस स्टील को समझते हैं, इतना तो मुझे। बोले आप आइए ऑस्ट्रिया, हम आपको इनवाइट करते हैं, हम आपको दिखाएंगे, करेंगे। बोलर स्टील कंपनी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। तो खैर जाना वाना तो क्या होता है, तो उन्होंने देखिए जेन्युइन निकले। बोले आप दो रास्ते निकालिए, एक तो जो ऑन द वे है वो तो हम वापस ले लेंगे, नया बेच
और जो इंपोर्ट होकर के आपके पास पहुंच गया, इसको करना इंडिया के रूल्स रेगुलेशन 79 में बहुत गड़बड़ थे। तो बोले कि मैंने कहा ठीक है भाई, ये मैं रख लेता हूँ, मेरे को इतना इसमें ये कमीशन दे दो, मतलब डिस्काउंट दे दो, देखा जाएगा जो होगा। हाथों हाथ फैसला किया। वो भी बोले यार ऐसा आदमी तो हमने कहीं देखा नहीं। सबका खैर, देखिए मेरा फॉरेन में ये फायदा होता था ट्रेवल से, बहुत ट्रेवल की मैंने इतनी ट्रेवल की है लास्ट, अब तो छोड़ दिया, 3 विजिट एक साल में। आई विजिटेड रशिया ऑल्सो वंस फॉर 2 वीक्स एंड वो क्या बोलते हैं, जॉर्जिया। जॉर्जिया इज द ओनली प्लेस जहां स्टालिन की फोटो है, बाकी सब जगह तोड़ता, एक अलाउ करी है। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज हैं और हैं सब जगह, यूएस से 3-4 बार जा सकते, बहुत वहां सीखने को मिलता, बहुत जगह। और लोग बोलते हैं, मैंने कहा देखिए ब्रिटिश लोगों को मैंने देखा, मेरी खुद का एक्सपीरियंस, सो हेल्पफुल, सो मेथोडिकल, सो पंक्चुअल। राइट। मैंने कहा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी जो 200 साल राज कर गए इंडिया पे और आधा वर्ल्ड पे। एक आइलैंड है, इंग्लैंड तो कोई कंट्री की जगह कंट्री की भी शेप नहीं है, पर उनके कई लॉयल टू देयर किंग्स और क्वीन एंड वेरी मच मेथोडिकल, वेरी, उनका अंग्रेजों से अपने इंडियंस ने खाली उनको राज के बाद में, अगर मैं बोला था उन दिनों, बोलता था कहीं कि अगर उनको 20-30-50 को रख लेते जॉब में तो हमारी कल्याण हो जाए। We would have a more organized things right at the beginning. एक मेरा एक दोस्त था अंग्रेज, वो वहाँ काम करता था अफ्रीका में, तो दोस्त बन गया। तो मैं फर्स्ट टाइम गया इधर इंग्लैंड, तो मैंने उससे पूछा तो कुछ टिप्स दे मेरे को। वो अंग्रेज था, वो बोला देखिए मैं आपको टिप देता हूँ, एक तो जहाँ टाइम है उस टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचना जी। वो अंग्रेज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वहां तो पंक्चुअल पहुंचना ही पड़ेगा। चलो अच्छी बात। हाँ, तो इस तरह करके वो समझ लिया मैंने। और मैंने कहा यार कहीं और मीटिंग में लेट हो जाए तो बोला उसको फोन करो कि आई एम लेट, आई कैन कम एट दिस टाइम और गिव मी अनदर अपॉइंटमेंट, तो तब बुरा नहीं मानेगा। और यही हुआ। तो मेरी विजिट से मुझे बहुत फायदा हुआ। आई मेट ऑल द टी कंपनीज। अब तो इंडिया में, अब तो इंग्लैंड ने चाय बेच वाली थी सारी, उसने उस टाइम वर्ल्ड की टी वर्ल्ड में यही लोग लाए थे अंग्रेज, कॉफी के अगेंस्ट। ये एक जिद पे हुई है टी डेवलप, भाई कॉफी और कंट्रीज की थी तो इन्होंने टी डेवलप करा दी। बड़े जोरदार किस्से हैं। एनीवे इंडिया का भला हो गया कि इतना आदमी लगा हुआ है चाय इंडस्ट्री में, प्लांटेशन में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया का तो ये लार्जेस्ट ड्रिंक एंड नेशनल ड्रिंक है और सबसे हेल्दीएस्ट ड्रिंक है। कोई नुकसान नहीं है चाय, कोई कुछ। तो इसमें लगे तो इसमें सफलता मिली, बहुत सफलता मिली। ऐसी कोई चाय की बनाने वाली कंट्री नहीं है जहां हमारा माल नहीं जाता। अभी लास्ट ईयर रशिया भी भेजी, उनका भी एक एरिया में चाय, और ये जापान भी हमारी कुछ चीजें जा रही हैं। तो और तो अफ्रीका के तो है ही सर। तो ये फिर सूरत स्टार्ट किया 1979। तो वहां पे मेरे भाइयों को भेज दिया, कजिन्स को भेज दिया। ग्रोइंग टाइम था सूरत का उस टाइम, 7 लाख की पॉपुलेशन, आज 65 लाख की पॉपुलेशन। बहुत बहुत टेक्सटाइल में उनको सफलता मिली। और मैंने कहा करो। एक तो देखो जी, ये नहीं घबराना चाहिए आदमी को कि ये गलत हो गया तो क्या, जो होगा होगा। आपने काम अच्छा सिलेक्ट किया, कोई स्पेकुलेशन तो है नहीं, तो उसमें वहां भी बहुत सफलता मिली, रियल में बहुत सफलता। तो अनिल तो यहाँ का देखता था, जानेश के आने से पहले ही मैंने उसको वहां शिफ्ट कर दिया। दो का काम नहीं है, अपना बाकी आदमी से कराओ, एम्प्लॉय गुड पीपल। तो इस तरह करके टेक्सटाइल में वहां डेवलप अच्छा हो गया। एजुकेशन में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। बहुत साल, मेरे पिताजी का भी बहुत था। बहुत साल पहले उन्होंने कहा यार तुम लोग कुछ पैसा वैसा कमा लो तो एक छोटी सी स्कूल बना है।
वो मैंने गांठ बांधी। मैंने कहा अगर बिजनेस के अलावा कोई काम करना है तो एजुकेशन का करना है। और वो रामकृष्ण जी सरावगी जो मंत्री थे, उन्होंने जो कहा भी अपने जन्मभूमि में भी करो और कर्म भूमि में भी। तो कर्म भूमि कलकत्ता, तो हेरिटेज हो गया, यहाँ पर जन्मभूमि में बीआरसीएम हो गया, बस काम पूरा। मेरी लाइफ के सारे काम पूरे हो गए। भगवान ने अच्छे बच्चे दे दिए, सबकी शादियां हो गई, तो मेरा कोई काम बाकी नहीं है उस तरह से। अब सबको आशीर्वाद देने का काम तो अभी भी है, प्रोवाइडिंग दैट स्ट्रेंथ एंड बिलीफ एंड गाइडेंस. And here I would sir take this opportunity to emphasize Prince हरि किशन चौधरी जी, अभी आपने जो उनको सुना उससे दो चीजें और हमारे आपके सीखने के लिए हैं. There are two things that he has very strongly practiced in his own life. One is reading, and जो इन्होंने कहा कि किसी भी he has a reputation कि वो जो भी टॉपिक टेक अप करते हैं, लाइक उन्होंने एग्जांपल भी शेयर किया कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जब बात कर रहे थे तो ही गॉट कंफ्यूज कि क्या ये मेटलर्जिकल इंजीनियर है, जबकि विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड अ लॉ बैकग्राउंड, एंड दैट इज द लेवल ऑफ डेप्थ ही गोज व्हेन ही गेट्स इनटू रीडिंग. सो प्रिंस, अगर हमें लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, आई थिंक वन लेसन वी कैन टेक फ्रॉम हरि किशन चौधरी जी इज reading should be a very very important integral part of our habit. और हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उससे रिलेटेड रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसकी डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है. और रीडिंग आप कुछ भी करेंगे, it is only going to help you at some point of the time or the other. And second thing which is he talked about his passion for traveling. देश दुनिया में काफी सफर किया और जो ट्रैवलिंग से उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किए, खाली यही नहीं है, आई एम अवेयर पर्सनली ऑल्सो अबाउट हिज ट्रैवलिंग हैबिट. इन्होंने ट्रैवलिंग सिर्फ बिजनेस के लिए ही नहीं करी. अब जब कोई नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं, अगर चौधरी जी ने सोचा कि स्कूल लगाना है तो फिर ये देश के दुनिया के तमाम स्कूलों में भी जाएंगे, उसको भी विजिट करके वहां से भी उसको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं. ट्राइज टू गेन दैट एक्सपीरियंस. इंग्लैंड में जाके मैंने कैम्ब्रिज देखी और मेरी एक इच्छा थी भी नेहरू जी यहाँ पढ़ते थे, उस स्कूल को देखो. तो मैंने जुगाड़ बिठा लिया, फोन करवाया प्रिंसिपल को, तो बोला ठीक है प्लीज लेट हिम. तो उन्होंने वो स्कूल देखा. हेरो ऑन द हिल्स इज द स्टेशन, वहीं वो हेरो. तो मैंने कहा देखिए मुझे पहले वो कमरा दिखाइए जिसमें नेहरू जी रहे थे. तो वास्तव में वो कमरा है अभी भी. उसके सामने एक वो लगा रखा है प्लेट, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इन दिस रूम फॉर दिस ईयर टू दिस ईयर. इतना तो देखा मैंने. काफी देर उससे बातें हुई और हुई प्रिंसिपल से. बोले यार कोई आदमी ये देखने नहीं आता, पूछने नहीं आता, आप इतने ज्यादा. मैंने कहा देखिए मैं एजुकेशन में हूँ और मुझे मालूम है हिंदुस्तान का निर्माण कैसे हुआ है. तो नेहरू जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो मैं चलो यहाँ पढ़े थे वो इतना मालूम. एक बार मैं गया था अमेरिका में, एक जगह है वहाँ स्कूल नॉर्थ फील्ड माउंट हर्बन स्कूल. उसके वो प्रिंसिपल और उसकी वाइफ इंडिया आए थे कोई टाइम में. तो उन्होंने वो बहल भी ले गया मैं उनको. तो वो सारा देखा हेरिटेज. तो उन्होंने बोला आप आइए कभी अमेरिका, हमारी स्कूल भी देखो. मेरा बाई चांस मौका लग गया. तो क्या जोरदार घटना होती थी. पहले तो वो उनका स्कूल क्या है, वो तो गजब. उनकी अपनी वीवर है, अपना चर्च है. 3000 एक जगह में फैला रखा हॉस्टल्स वगैरह सब. एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बस जाती है ले जाए. ज्योग्राफी बिल्डिंग, हिस्ट्री बिल्डिंग. मैंने कहा ये तो एक एक्सट्रीम केस है जी. तो तब उन्होंने अपने सारे हेड्स को बुला के और मेरे मीटिंग मेरे को बिठा दिया. बोला जी अब आप ये चौधरी जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया इनसे बात करो. तो उन लोगों ने ऐसी बातें. बोला जी आपके यहाँ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम कैसे चल रहा है. हमारे यहाँ तो शादी होते ही बच्चा अलग, साथ में नहीं रह सकता. हमारे यहाँ तो 4 जनरेशन भी रह रही है एक साथ में. कोई
कोई दिक्कत नहीं, हालांकि टाइम्स आर चेंजिंग। तो वो बड़ा इस बारे में पूछा कैसे क्या सिस्टम है। देखिए, बड़ों की हमारे यहाँ रेस्पेक्ट है और वो उनको कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, उनसे हमको गाइडेंस मिलती है, तो ऐसे चलता रहता है। एक क्या नाम, एजुकेशन का और का बहुत आइडिया लिया उन्होंने। मैंने कहा आप इंडिया आइए, आई विल यू बी माई गेस्ट एंड आई विल मेक योर ट्रेवल प्रोग्राम। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया, मैंने कहा लार्ज, एंड maximum many languages, and there is no quarrel at all. Right. I don't understand the language of a South Indian, but we have no problem. We don't have any problem, and nothing has happened to India's democracy. It is progressing, and in fact, it will be the number one country in the world very soon. Economy also, no doubt about it, and educational institutions, business industries, all are so very good, prospering like anything. तो बताया उनको, और चीजें बताई, सारी चीजें फैमिली की। तो मैंने कहा आइए आप, एक दो तो आके गए हो, मैं था नहीं कलकत्ता में, लेकिन वो ठीक है, द इम्प्रेशन वाज वेरी गुड। तो क्या है साहब, फॉरेन से जितना अपने को सीखने को मिलता है ना, मैंने देखा कि मैं तो अंग्रेजों का माने इतना आदर करता हूँ, वो बड़े गुण है उनके अंदर, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी एंड सिंसियरिटी टू देयर किंग क्वीन, जो भी है, इतना उनका ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक काम है ना, किसी का नहीं। And I think that is what we all need to learn, that we need to be organized and systematic about our efforts and initiative. And sir, आपसे बातें करते करते पता भी नहीं चला कब हमारा 1 घंटा already हो गया है. It's been so enriching. लेकिन before we I would like to close the session with a question from a viewer who says that he wants to know your key things, your secret to keep yourself motivated. इस समय हम लोग जो लाइफ की सिचुएशन चल रही है, हर कोई एक दुविधा वाली स्टेज में है, लॉकडाउन पीरियड है, इकोनॉमी भी अपने आप में ऊपर नीचे है. How to keep ourselves motivated? Your message to our viewers today. You see, first of all, one should not be pessimistic. One should not lose heart under any situation. वो आई वो चली जाएगी, जब तकलीफ आती है तो चली। उसके अंदर में दूसरी बात क्या है, अंग्रेजों ने जो ऐसे नहीं कह दिया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज द बेस्ट पॉलिसी, उसको फॉलो करना चाहिए। जो हिंदुस्तान का नाम डिसऑनेस्टी ने, बेईमानी ने खराब किया, इतना किसी चीज ने नहीं। दूसरा, एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाओ जितना पढ़ सके, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। एंड ऑलवेज डू समथिंग अंडर विद इन योर लिमिट फॉर द सोसाइटी, डोंट पोस्टपोन इट, हम बाद में देखेंगे, ये नहीं। Nearly 10% income of a family should go into charity of their choice. किसी को ऑर्फनेज में अच्छा लगता है, किसी को किसी स्कूल को देना अच्छा लगता है, किसी को स्कॉलरशिप देना अच्छा लगता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। हमने भी कुछ बच्चों को पढ़ाने में मदद की, बड़े पोस्ट पे चले गए। तो तिवाड़ी जी को तो आप जानते ही हैं, पीएन तिवाड़ी को, उसके वो तो बोला ये तो गांव में रहेगा। मैंने कहा नहीं, उसको बैल भिजवाया, उसको गांव से पहले तो स्कूलिंग कराई, फिर हेरिटेज में पढ़ाया, उसको इंजीनियरिंग कराई, और अब पोस्ट पे चला गया। ही इज विंग कमांडर और समथिंग, इज इन एयरफोर्स, ही इज इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन एयरफोर्स। सारा इनके भरोसे तो कुछ होने वाला था नहीं। इसी तरह सबसे ज्यादा किसी की शिक्षा में हेल्प कर दी, एक किसी की जैसे गरीब की लड़की की शादी में हेल्प करनी चाहिए। जैसे वो अब तो वो बात नहीं रही, पहले गरीब की शादियां नहीं होती, कैसे करें। तो हमारे तो बाबूजी कई बार तो पूरा ही अडॉप्ट कर लेते थे, पूरी शादी का खर्चा हम, तो रिश्ता कर दो खाली। बहुत काम किया बाबूजी। मेरे फादर इज माई इंस्पिरेशन। एक इंस्पिरेशन और एक अध्यापक थे मेरे स्कूल की टाइम, अब 85 के हो गए, अभी गुजरे हो लास्ट ईयर। वो बड़े जोरदार आदमी थे सर, बड़े गजब क्या, सारी स्कूलिंग उनके अंडर में हुई।
एक बात और बता दूं, मैं भूल नहीं जाऊं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था। ये कहा कि ये सब फालतू बात है, कोई नहीं है ये। अब उतना मैं विरोध नहीं करता, लेकिन खुद तो अभी भी नहीं मानता जी। पूछता दिखाओ कहाँ है? अभी अपने अंतर में अच्छे रहो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बनो। भगवान को क्यों बीच में लड़ाते हो अपना वो बना करके? वो कहां से आ गया बीच में? राइट। गलती खुद करेंगे और बोलेंगे भगवान की मर्जी। कोई भी काम करेंगे भगवान की मर्जी, ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा मैंने देखा कि मिसयूज कर रहे हैं भगवान के। जी। और अपने तो क्या देखिए, एक चीज शिक्षा ली कि भाई अपने अंदर में रहो, अंदर से किसी के हेल्पफुल बनो, बस पार पड़े होता है। थैंक यू सो मच सर। राजीव जी, आपका जो सवाल है, व्हाट कीप्स हरिकिशन चौधरी जी motivated and what message can he give to you? He said very clear suggestion: be optimistic. Pessimistic thought को अपने अंदर आने मत दीजिए। किसी की मदद करने में थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों के दर्द को बांटेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्टिमिज्म और बढ़ेगा। यू विल आल्सो रिमेन इवन मोर पॉजिटिव एंड जहां पे भी आप किसी को एडुकेट कर सकते हो जरूर करें, क्योंकि चौधरी जी का एक वन ऑफ द मेजर मोटिवेटर वाज providing education to people. It was not just his passion but also his motivation जिसने इनको ड्राइव किया। और कहीं ना कहीं उसकी बीच इनके पिताजी से आई। His father has asked him कि जब कभी कुछ थोड़ा पैसे कमाना तो स्कूल जरूर एक छोटा सा शुरू करना, and he has made it a point that एक छोटा सा नहीं बल्कि देश के कोने कोने में at different point of places providing a quality education to people and helping people. That kept him motivated and he wants you to remain optimistic and positive. He also emphasized कि भगवान को हर समय परेशान मत करो. Don't misuse the entity of God. भगवान है, श्रद्धा है, right? लेकिन हर चीज में कि भाई हमसे गलती हम करें और कहें भगवान की मर्जी, वो थोड़ा सा भगवान के साथ ज्यादती हो जाएगी। और अगर हमें भगवान का किसी तरह से सेवा करनी है तो मैनकाइंड की सेवा करें, अपने मन को साफ रखें, अपने अंतर मन को अच्छा रखें, और जो अंदर से पॉजिटिव आए उसको अगर हम करते जाएं तो शायद हम पॉजिटिव भी रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक भी रहेंगे और एक सकारात्मक जीवन भी जीते जाएंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ enlightening experience sharing, and friends, this is because of you only. it's so very nice of you. And friends, I would before I thank formally to Harikrishan Chaudhary ji for his presence, I remember, you know, when we talk about belief, I am from Lucknow and I started my career journey, and then I started my unit and a venture in Calcutta. And some of the people who trusted and believed when I was yet to be known about more than 2 decades back in Calcutta, somebody introduced me to Mr. Harikrishan Chaudhary at that point of time. And after a few minutes of our meeting, he said, मैं आपको समझ गया हूं, I know I can trust you. I've understood you, and the belief that he has shown at that point of time, he has not hesitated in recommending me to people as well at that point of time. Some of the best of the friends that I have in Calcutta, well-wishers I have in Calcutta, are initially being introduced to me by Harikrishan Chaudhary ji. So he is a person who is a visionary, who is an executioner, and who believes कि अगर आपको मुहूर्त देखना है तो देशभक्ति के मुहूर्त देखिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, उनसे ज्यादा और कोई शुद्ध और अच्छे दिन नहीं हो सकते हैं किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए। And with that vision, thank you so much, sir, for being part of our episode in Ed Talks today. Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. Can I get up? Bilkul, sir. Friends, you are watching Mr. Harikrishan Chaudhary ji, his life and times from his mouth itself. Harikrishan Chaudhary ji की जीवन की का ये सफर, उन्हीं की जुबानी अभी आप सुन रहे थे। और ये प्रयास से सफलता तक का ये जो सफर है, इसमें सेल्फ बिलीफ, इसमें रीडिंग, इसमें लर्निंग, इसमें सोशल कमिटमेंट, इसमें चैरिटी, इसमें फोकस, इसमें प्रोफेशनलिज्म,
सारी चीज का एक साथ समरिशन था, and I'm sure you will find it very enriching. और इसी कमिटमेंट के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंडे with another social influencer. Keep watching Ed Talks with Amitabh only on the School Times web channel. Thank you so much. Take care. Stay home. Stay safe. Stay cautious.